Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online, and I am Dr. Asad, and with my specialty in the subject of biology I will be discussing a very important aspect of the kingdom fungi, also known as the recyclers. तो इसमें हमने specifically ascomycetes में sexual reproduction already discussed की थी in our previous lecture. So in this lecture we will discuss how asexually they can reproduce and what is their significance within an ecosystem and how they are important and even on the commercial basis. So by the end of this lecture you should be able to answer these questions that involve how asexual reproduction occurs within the ascomycetes, which specific structures are involved in it, and what is the economic or the ecological significance of the ascomycetes. So asexual reproduction की अगर हम बात करें ascomycetes में, तो ascomycetes में जो है this can be through budding. ठीक है, ये budding का phenomena जो है specifically हमने पढ़ा था related to yeast. Now yeast is also a type of ascomycetes. ठीक है, तो बर्डिंग का फिनोमेना ऑलरेडी हमें पता है कि एक जो है स्पेसिफिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसके स्पेसिफिक रीजन से देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ एन आउटग्रोथ, और वो आउटग्रोथ जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इट बर्ड्स ऑफ, जिसकी वजह से एक पेरेंट सेल से एक नया सेल फॉर्म हो रहा होता है. ठीक है, सो देयर इज़ नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, बल्कि एक ही जो पेरेंट सेल है उससे एक आइडेंटिकल ट्विन की फॉर्मेशन होती है और वो फिर जो है वो पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाता है. तो दिस इज़ द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट अकर्स इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सो यीस्ट जो है दैट इज़ वन ऑफ द यूनिसेलुलर इन केस ऑफ ascomycetes. Second type of asexual reproduction that has been studied in case of ascomycete is through conidia formation. अब conidia basically क्या होते हैं? These are basically external spores that are found at the modified end of the fungal hypha, जिसको कि हम conidiospores कहते हैं. Conidiospores के ऊपर there is presence of spores that do not have any specific covering, so उसके ऊपर ही there is attachment of the spores. So obviously these spores that are formed that are known as conidia, obviously spores जो हैं they have an external covering that is not present in case of the conidia, so they are non-motile and they spread through air, water and other different mediums as well. ठीक है, जैसे कि insects हैं उनके थ्रू भी ये ट्रांसफ़र जो है वो हो सकता है. डायग्रामेटिकली इफ़ वी वांट टू रिवाइज दीज टू फिनोमिनास, तो कोनिडिया हमें पता है इस तरह से देयर इज़ अ माइसीलियम जिसकी जो ब्रांचेस हैं उसको हम हाइफा कहते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली स्पेसिफिकली दीज टाइप्स ऑफ फंगाई दे आर सेप्टेट एज वेल. ठीक है, तो इस तरह से सेगमेंटेशन है. ठीक है, हर एक सेगमेंट में अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ठीक है, हाइफा एक्सटेंड्स टू गिव राइज टू, हाइफा की जो एक्सटेंशंस हैं दे कंसिस्ट ऑफ द कोनिडियोस्पोर्स. ठीक है, जिसके के ऊपर देयर इज़ अटैचमेंट ऑफ एक्सटर्नल स्पोर्स जिसको कि हम कोनिडिया कहते हैं. ठीक है, so whenever they are mature they will bud off from these areas. ठीक है, spread into the environment through air, water or wind, and they will germinate in any favorable environment. budding का concept क्या था कि एक single cell है. ठीक है, उसके साथ ही एक outgrowth बनेगी. ठीक है, and finally what will be the resultant? ठीक है, ये न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होता है इसका. ठीक है, उसके बाद क्या होगा? द रिजल्टेंट इज आर द डॉटर सेल. ठीक है, इस तरह से जो है वो डॉटर सेल बन जाएंगे, और जहाँ से ये बड ऑफ होता है उस एरिया के ऊपर देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ अ स्कार. ठीक है, जैसे कहीं भी आपको चोट लगती है तो उसके सरफेस के ऊपर एक स्कार फॉर्मेशन हो जाती है. तो यहाँ पे भी पेरेंट सेल से जब भी बड ऑफ होगा
स्पेसिफिक आउटग्रोथ जो है वो बर्ड ऑफ हो जाएगी तो अपना एक रिमेनेंट स्कार यहाँ पे छोड़ जाती है कि जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है जैसे कि budding of an outgrowth that has resulted in formation of a new unicellular organism. Now we will try to find out what is the importance of these ascomycetes and at what specific level they are being used to form different products. So हमारे पास एक specific type of yeast species है जिसको कि हम कहते हैं Saccharomyces cerevisiae and that is important in production of certain liquid products. ठीक है, जैसे कि अल्कोहल ड्रिंक्स हो सकती हैं, इसके अलावा स्पिरिट है जिसको कि मेडिकली यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू डिसइंफेक्ट और वुंड्स. ठीक है, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ ब्रेड दैट इज़ अनदर एडिबल दैट इज़ यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल इन देयर डेली लाइफ, तो उसकी भी फर्मेंटेशन के लिए दिस स्पेसिफिक फंगस इज़ यूज्ड. ठीक है, इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ आ जाता है इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ यीस्ट का. क्यों इसका यूजेज है? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करता है. तो जेनेटिक्स में भी जो है वो हमें क्या रिक्वायर्ड होता है कि हमें हमारे पास ऐसा ऑर्गेनिज्म हो कि उसमें जो भी हम स्पेसिफिक जीन डालें जो कि हमें रिक्वायर्ड, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ रिक्वायर्ड हैं, तो वो जल्द से जल्द विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम मल्टीपल कॉपीज़ हमें बना के दे दे. तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डिज़ायर्ड जीन होता है जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, उसको हम यीस्ट में इंसर्ट कर देंगे उसके जीन के अंदर. ठीक है, जो उसका न्यूक्लियस है, तो उसमें केस में क्या होगा कि जब भी वो मल्टीपल कॉपीज़ बनेंगी उस स्पेसिफिक यीस्ट की, जैसे कि बडिंग के थ्रू या डिफरेंट मैकेनिज़्म के थ्रू, तो क्या होगा कि वो जीन जो हमें रिक्वायर्ड है वो भी हमें उसकी मल्टीपल कॉपीज़ मिल जाएंगी और फिर हम थ्रू डिफरेंट लैब टेक्निक्स उस स्पेसिफिक जीन को उस यीस्ट की मल्टीपल कॉपीज़ में से हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं और अपने डिज़ायर्ड पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक तो डिफरेंट फूड जो कमर्शियली यूज़ होते हैं, इसके अलावा लैब्स में भी आप देख सकते हैं कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस हो सकती है. सो दिस इज़ द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंगाई. और जब हम इस चैप्टर को एंड करेंगे तो उसमें भी हम डिफरेंट इकोनॉमिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या इकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फंगाई, वहाँ पे भी इसको डिस्कस करेंगे. लेकिन चूँकि ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंगाई है रेलिवेंट टू एस्कोमाइसीड्स, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हमने इसको जो है वो स्पेसिफिकली हाईलाइट कर दिया द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ फंगाई ऑन इकोनॉमिक बेसिस कि कमर्शियली किन किन प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ है और जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें भी इसका एक अहम रोल है. This is the end of our lecture where we have discussed the importance and asexual reproduction in ascomycetes. So do like and share our video with your other students as well. And in the comment section, do mention if you have any relevant question to the topics that we have covered over here. Do not forget to subscribe to our channel and click the bell button so you can receive new notification of our updated videos on regular basis. Thank you very much.